everyone, welcome back to my YouTube channel. This is the lecture 28 of a highway engineering and we are covering the module 3, that is the traffic engineering. In the traffic engineering we have covered all the important topics, and in the previous lecture we have covered the traffic sign and the Webster method. Webster method is very important for the numerical point of view, and today we are going to cover one important topic, that is the conflict point for the uncontrolled intersection. This topic is important because the question from the state level competitive exams are framed from this topic. Okay, so you will see the question from this topic in the state level competitive exams. So we will study all the important point related to this topic, and we will see the number of conflict point for the different cases and conditions. Okay, so let us start our lecture. So before going to the number of conflict point for the uncontrolled intersection, we will first understand what is the intersection. Okay, so intersection is a junction. I will write here, an intersection is a junction where two or more, it may be two or it may be more than two, roads or streets meet or cross. Okay, you can see that these are the two roads. For example, this is road A and this is road B, and they are intersecting at a junction. This place, this is known as the intersection. Okay, so this is known as the intersection where two roads or a street meet or cross each other. Okay, so this is the intersection. What is, now we will see what is lane. Okay, so can you tell me what is lane? If this is lane or this is lane? No, this is not the lane, this is the road. Okay, so these are the lanes, lane 1, लेन 2, एंड ये दो लेन है, यहाँ पर दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, 3, 4, यहाँ पर जितनी भी लेन्स होंगी ये एक रोड के अंदर होंगी. ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी कितनी लेन्स है आप देख सकते हो, लेन 1 एंड लेन 2. तो यहाँ पर भी कितनी लेन है, 2 लेन है. ठीक है, 2 लेन से भी ज़्यादा लेन होती हैं, 3 लेन 4 लेन की भी होती हैं. ठीक है, तो ये होते हैं हमारा लेन्स. व्हाट इज़ वन वे एंड व्हाट इज़ टू वे? वन वे मीन्स कि जो व्हीकल का मूवमेंट है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में पॉसिबल होगा. ठीक है, और टू वे क्या होगा कि व्हीकल जो है वो दोनों डायरेक्शन में उसका मूवमेंट पॉसिबल होगा. ओके, तो हमने बेसिक पॉइंट समझ लिए कि व्हाट इज़ इंटरसेक्शन एंड व्हाट इज़ लेन. नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट है फॉर दी अनकंट्रोल्ड इंटरसेक्शन. ओके, so now we will see the conflict point for the uncontrolled intersection. Okay, so the number of conflict point for the uncontrolled intersection depend upon the number of lanes and the it is one way or a two way. Okay, so this is the case and these are the conditions. Okay, so one by one we will see all the number of lane cases and the one way or two way conditions. Okay, so first we will take the first case, that is when for road A, if this is road A and this is road B, if the road A is having 2 lanes. Okay, if the road A is having a 2 lanes and the second road is also having a 2 lanes. Okay, and the condition is that both are two ways. Okay, in that case the number of conflict point will be equals to 24. Okay, एंड अगर एक रोड जो है वो टू वे है और दूसरी रोड क्या है, वन वे है. ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट है वो हो जाएगा 11. ओके, और सिमिलरली इसी केस के लिए अगर दोनों रोड वन वे हैं तो आपका नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट कितना हो जाएगा, 6. वी विल सी आवर सेकेंड केस. ओके, सेकेंड केस क्या है कि जो आपका रोड ए है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ रोड ए, तो अगर रोड ए में 2 नंबर ऑफ लेन्स हैं और रोड बी में 3 नंबर ऑफ लेन्स हैं. ठीक है, तो उस केस में अगर आपका जो रोड ए और रोड बी दोनों टू वे है तब आपका नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट कितना हो जाएगा, 24. ओके, 24 हो जाएगा. ठीक है, इस केस में भी 24 था. नेक्स्ट हम देखते हैं, एक रोड टू वे है और दूसरी रोड क्या है, वन वे है, और हमारा इस केस के लिए नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट कितना हो जाएगा, 11. ओके, ये भी सिमिलर है प्रीवियस केस के जैसे, बट अगर हम देखेंगे कि जो हमारा दोनों रोड हैं वो वन वे हैं और इस केस के लिए हमारा नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट क्या होगा, नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट विल बी 8 हो जाएगा. ठीक है, ये सिमिलर नहीं है प्रीवियस वन वाले से, इसलिए आप इसको ध्यान रखना. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा थर्ड केस कि अगर जो हमारा रोड ए है वो उसमें 2 लेन है और अगर हमारे रोड बी में 4 लेन है. ओके, 4 लेन्स, तो उस केस में डिफरेंट कंडीशंस के लिए नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट क्या होंगे. ठीक है, तो अगर आपके एक रोड में 2 लेन है और दूसरी रोड में 4 लेन है और अगर दोनों रोड टू वे हैं, उस केस में आपका नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट हो जाता है 32. ओके, दिस इज 32.
और इसी केस के लिए अगर आपका कंडीशन क्या है कि आपका एक रोड जो है वो 2 वे है और दूसरी रोड क्या है आपकी 1 वे है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपका नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी 12। ओके। और नेक्स्ट अगर आपका दोनों रोड क्या है 1 वे है और आपके में एक रोड 2 लेन की है, दूसरी रोड 4 लेन की है, तो आपका नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट कितना होगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा फोर्थ केस, दैट इज़ व्हेन एक जो रोड ए है, अगर आपकी कोई रोड ए है उसमें 3 लेन है और दूसरी रोड में भी अगर आपके 3 लेन है, ठीक है, मतलब कि आपकी दोनों रोड में 3 लेन है और उस केस में अगर दोनों रोड 2 वे हैं, तब आपका नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट विल बी 24। ओके। और बट अगर उसमें क्या कंडीशन दे दी गई है कि आपकी एक रोड जो है वो 2 वे है और दूसरी रोड क्या है 1 वे है, तो उस केस में आपका जो नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट है वो कितना हो जाएगा, 13। ओके। नेक्स्ट क्या है, अगर आपका दोनों रोड 1 वे है और आपकी 3 लेन है, तो आपका नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट कितना होगा, 11। ओके, इट विल बी 11। ओके। हम केस में क्या होगा कि जब आपके दोनों रोड 4 लेन के होंगे और अगर दोनों रोड 2 वे हैं, तब आपका नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट क्या होगा, 24। ओके, नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट होगा आपका 24। बट अगर आपका क्या है एक रोड 2 वे है और दूसरी रोड 1 वे है, तो उस केस में क्या होगा, आपका नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट 25 हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, अगर आपकी दोनों रोड 1 वे हैं, तो आपका नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट कितना हो जाएगा, इस केस के लिए जब दोनों रोड में 4 लेन है, ठीक है, तब आपका नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट हो जाएगा 18। ओके। तो ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्टली आपको क्वेश्चन फ्रेम करके दिए जाते हैं कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो आपको ये टेबल अच्छे से समझ में आना चाहिए और इस टेबल को आप ध्यान में रखना, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिससे आपको समझ में आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम किए जाते हैं। This is our first question. In the question it is given 2 major highways having intersection at a point A. कोई एक point A है जहाँ पर 2 major highway का intersection है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं having 2 lanes each, मतलब कि दोनों में कितनी लेन्स हैं, 2 लेन्स हैं, ठीक है, 2 लेन्स दोनों में हैं। एंड बोथ आर 1 वे, और क्या दिया गया आपको कंडीशन कि दोनों जो हैं वो 1 वे हैं। देन द नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट एट इंटरसेक्शन ए इज़, ओके, तब आपको पूछ रहा है कि नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट कितना होगा आपका इंटरसेक्शन ए पर, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमारा क्या केस दिया है और क्या कंडीशन है। तो केस क्या है, आपके पास 2 मेजर हाईवे हैं और क्या है, दोनों में 2 लेन्स हैं, ठीक है। तो क्या होगा आपका, कौन सा केस आएगा बताइए, आपका केस होगा ये, ठीक है, इसमें दोनों में 2 लेन है, तो आपका ये केस होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा कंडीशन क्या है। कंडीशन ये है कि यहाँ पर दोनों रोड जो हैं वो 1 वे हैं, 1 वे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा कंडीशन क्या है, रोड ए एंड रोड बी बोथ आर 1 वे। तो उस केस में, उस कंडीशन में, इस केस के लिए क्या वैल्यू है हमारी, 6 है, 6। ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 6। ओके, तो सो दिस इज़ योर आंसर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन फ्रेम करके पूछे जाएंगे, जस्ट आपको केसेस और उनकी कंडीशन के करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट को समझना होगा और याद करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा सेकेंड क्वेश्चन कि इसको और किस तरीके से फ्रेम किया जाता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ द नंबर ऑफ लेन्स ऑफ रोड ए आर 2, कोई एक रोड ए है, ओके, उसमें कितनी नंबर ऑफ लेन्स हैं, 2 लेन्स हैं। एंड द नंबर ऑफ लेन्स ऑफ रोड बी आर 4, कोई रोड बी है उसमें कितने लेन्स बोले गए हैं आपको, 4 लेन्स हैं, ठीक है। और क्या बोला गया है, ये आपका केसेस हो गया, ठीक है। अब क्या बोला गया आपको, बोथ द रोड्स आर 2 वे। अब आपको कंडीशन क्या दी गई है, ये रोड भी 2 वे है और ये रोड भी 2 वे है आपके लिए, ठीक है। तो आपको पूछा गया है देन द नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट एट द इंटरसेक्शन इज, आपको नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट बताना है इंटरसेक्शन पे, ठीक है। तो हम अपना केसेस का कंडीशन देखते हैं। रोड ए क्या बोला गया आपको, रोड ए में कितनी लेन्स हैं, 2 लेन्स हैं, और रोड बी में कितनी लेन्स हैं, 4 लेन्स हैं, ठीक है। और आपको कंडीशन क्या दी गई है कि वो दोनों क्या है, 2 वे हैं, ठीक है। तो आप इसके करस्पॉन्डिंग देखो कि आपको कौन सा केस मिल रहा है, तो दोनों में ये वाला आपका थर्ड केस मैच कर रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 32, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपना आंसर यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 32। तो टोटल नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट कितने हो जाएंगे आपको इस केस में लिए, सो नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट विल बी इक्वल्स टू 32। ओके, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको जस्ट वो टेबल समझ में आना चाहिए और आपको वो टेबल जो है याद रहना चाहिए, उसके हिसाब से आप अपना कोई भी डिफरेंट केसेस और कंडीशंस के हिसाब से आप अपना आंसर
दे सकते हो, ठीक है। ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द रोटरी एंड द डिजाइन ऑफ अ रोटरी एंड द कैपेसिटी ऑफ अ rotary. Okay, so if you like this video then please like, share and subscribe the channel. Thank you.